السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ کھانے کے بعد سورج قریش کی تلاوت کرنے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کھانے سے 17 سال تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نیند کی بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے پودنے کا رس چہرے پر لگائیں۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ زیادہ کھانا خواتین کی یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اپنے ناشتے اور دوپہر کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے میں بے حد مفید ہے۔ جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح پاؤں اور ہاتھ کا مساج کریں، اس سے ہاتھ پاؤں نرم ہو جائیں گے۔ بکرے کی چربی کے تیل سے سر پر مالش کرو، 90 سال تک بال نہیں گریں گے اور نہ ہی سفید ہوں گے۔ لیموں پانی کی سانس کو بدبو کو دور کر دیتا ہے۔ پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ چائے گیس کی پرابلم پیدا کرتی ہے۔ چائنا ربڑ والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی اور قد بڑھنے میں مسئلہ ہوگا۔ انڈے کی زردی یادداشت کو تیز کرنے میں بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ اکثر ٹیکہ لگوانے کے بعد کئی دن بازوؤں پر سوجن رہتی ہے اور درد کرتا ہے۔ ایسے میں ٹیکے کی جگہ سوجن کی صورت میں برف سے اچھا سا ٹکور کریں۔ 3 سانس میں پانی پینے سے کوما نہیں ہوتا۔ شام کے وقت دہی کھانے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے اور پیٹ اندر ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانگی ہمیشہ درست رہے گی۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا: اعتبار، انتظار اور اظہار، کامیاب رہو گے۔ فلسے کا جوس پینے سے پیشاب کی انفیکشن میں آرام ملے گا۔ روزانہ دوپہر کے وقت امرود کھایا کرو، اس سے کینسر جیسی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے بچے رہو گے۔ 50 سال کے بوڑھے 20 سال کے جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو انار کا جوس پیا کریں۔ 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا: زبان، حیا اور راز زندگی بھر پچھتاؤ گے نہیں۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام ہونے کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے بنا کر پیو، شکایت ختم ہو جائے گی۔ اخروٹ کے مغز بچوں کو رات کو سوتے وقت کھلا دیے جائیں تو ان کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ شلجم پتھری اور کھانسی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس سادہ نیم گرم پانی پینے کے بے انتہا فائدے ہیں۔ آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جائے گا اور سارا دن بدن کو ہلکا محسوس کرو گے۔ پالک میں ثابت لیموں ڈالنے سے قبض کی شکایت ہو تو فوراً قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ کولیسٹرول کم کرنا چاہتے ہو تو دوپہر کے وقت 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کرو۔ جو عورتیں ہمیشہ جوان دکھنا چاہتی ہیں، ایسی عورتیں بالکل غصہ مت کیا کریں، کیونکہ غصہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے، جو کہ جلد بڑھاپا لاتا ہے۔
दौलत ईमान की हो या दुनिया की, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी नींद कम होती जाएगी। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी खुराक को हलाल रखो, हर दुआ कबूल होगी। खुश्क कुर्बानी हाजमे के निज़ाम को तेज़ करती है, कब्ज़ दूर कर देती है, खून की कमी ख़त्म करती है और हड्डियों और जोड़ों के दर्द में मुफीद साबित होती है। रात को सोने से कबल 2 दाने हरीड़ का मुरब्बे नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। खाने के बाद अदरक का टुकड़ा चबाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी और चेहरा हमेशा जवान नज़र आने लगेगा। शुगर और ब्लड प्रेशर के मसाइल दूर होने लग जाएंगे और नज़र कैमरे जितनी तेज़ हो जाएगी। मौसम करवट बदले तो तुम लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर किया करो। सुबह निहार मुँह 1 गिलास सादा नीम गर्म पानी पीने के बेअंतहा फ़ायदे हैं। आपके पेट की सफाई हो जाएगी, आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा और सारा दिन बदन को हल्का महसूस करोगे। इलायची वाला पानी पीने से मैदे की तेज़ाबियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। कीकर की लकड़ी की मिसवाक करने से दांत सीधे और सफ़ेद हो जाते हैं। पानी में नीम के पत्ते उबालकर पखाने वाली जगह को धोने से बवासीर दूर हो जाती है। खजूर बकरे के दूध में शामिल करके पीने से बदन तवाना हो जाएगा। पानी कम पीने से बदन सुस्त हो जाता है। जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों से मालिश कर लें। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला दें, इससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। पालक, साग, मेथी बदन थकावट और सुस्ती को उदासी को दूर करता है। खाने के फौरी बाद पखाना आ जाए तो ये मैदे की कमज़ोरी की अलामत है। उल्टा सोने वाले लोगों की ज़हनी सलाहियत जल्द कमज़ोर हो जाती है। जिनसी कुव्वत बढ़ाने का देसी नुस्खा: सूंड कबाब, चीनी दार चीनी, हर एक चीज़ 10 ग्राम, जायफल, मुस्तलगी औद, अरकी अकरकरा, एक 6 ग्राम बनाने का तरीका ज़रूर सुन लें। इन दवाओं के कुल वज़न के बराबर शहद ले लें। 3 गुना वज़न शक्कर मिलाकर कवाम बना लें और उसमें मजून तैयार कर लें। रोज़ाना 10 ग्राम इस्तेमाल करें गाय के दूध के साथ। चंद दिन में जिनसी कुव्वत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और ताकत आ जाएगी। जब खांसी बढ़ जाए तो मीठी चीज़ का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें और ना तुम्हारा गला काफ़ी हद तक बैठ सकता है। उबासी खाना खाने से दिमाग कमज़ोर होता है। जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं उनको अंधेरे में खौफ आता है। मुंह खोल कर सोने वाले अफराद दिमागी टेंशन का शिकार हो जाते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पाँव के बल ज़्यादा देर बैठने से हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है। चेहरे पर पानी की भाप लिया करो, उससे आपका चेहरा हमेशा जवान नज़र आएगा। कच्चा अनार मत खाओ, गुर्दे में पथरी पैदा करता है। गाय की चर्बी खाने से मोशन नहीं लगते। खाने के फौरी बाद नहाने से बचो, वरना आपकी सेहत के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। मूली के पत्तों का रस निकाल कर पीने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अमरूद खाने के बाद पानी या दूध पीने से मैदे की खराबी हो जाती है। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर। अदरक का रस चाटने से ताकत बढ़ती है। हर 2 दिन के बाद तोरी की सब्ज़ी खा लिया करो, बदन में बेतहाशा ताकत आ जाएगी। लेमू का छिलका चबाने से हाजमा बेहतर रहता है। हर वक्त बदन का ठंडा रहना खून की कमी होने की अलामत है।
नीम गर्म पानी के 3 घूंट भरकर सोने से बदन की थकावट हमेशा के लिए दूर रहेगी। दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस दरख्त की जड़ों में डाल देने से दरख्त फल देना शुरू कर देगा। मछली के तेल से कमर की मालिश करने से कमर का दर्द, जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाएगा। लटकी हुई जल्द और जरियों के लिए अनार का इस्तेमाल बेहद मुफीद साबित होता है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। जब आपके पास कोई परेशान हाल, मजबूर या मुसीबत ज़्यादा हो तो ये ना सोचें कि ये उसकी आजमाइश है, बल्कि ये भी आपकी आजमाइश है। अगर कोई बच्चा लोहे की कोई चीज़ या बारीक सुई निगल जाए तो फौरी उसको ज़्यादा से ज़्यादा केला खिलाएं। मैदे में ज़ख्म नहीं होने देगा। वीडियो को लाइक करें। जो औरतें पेट के निकलने की वजह से परेशान हैं वो खीरे का रस निकाल कर पी लिया करें। बकरी के दूध पीने से बाल लंबे हो जाते हैं। शहद ज़बान के नीचे रखो, दिमाग तेज़ हो जाएगा। धनिया का रस गंज पर लगाने से बाल ऐसा ऐसा आना शुरू हो जाते हैं। मुस्कुराने से दिल की नाली साफ हो जाती है। बूढ़े जानवर का गोश्त ना खाओ, ताकत कम होती है। रोज़ाना एक बाल उखाड़ने से आपके बाल लंबे हो जाएंगे। सोने से कबल लेमू चाट लेने से आपको नींद अच्छी आ जाएगी। जिस घर में परिंदों और जानवरों और चोंटियों को रिज्क मिलता है उस घर में कभी रिज्क की कमी नहीं होती। अदरक में अर्क, गुलाब और दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से सालों पुरानी झुर्रियाँ एक ही रात में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। रोज़ाना 41 बार या अजीज़ो पढ़ने से कभी किसी के मुताज नहीं होंगे और अल्लाह पाक बहुत कुछ अता फरमाएगा। अगर रोज़ाना सुबह निहार में 2 सेब खाया करो, 1 पाव दूध पी लिया जाए तो 6 हफ्तों में सेहत लाजवाब ताकतवर हो जाएगी। माथे पर हाथ रख कर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जो लोग दूसरों को जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। नाश्ते में नीम गर्म दूध का 1 गिलास और 1 सेब चेहरे की ताजगी और खूबसूरती के लिए बेहद मुफीद साबित होता है।